in this session, and I'm very happy to meet you all again after a wonderful celebration of our festival. And now we are back again on the session. So let's begin the session. Before we start the session, a quick important information which I would like to share. We will be first running some presentation, then we will do an online demo also on how you create a JMS on the new portal, that is Supplier First portal. Uh, I would also request everybody to please comment that whether you want this particular session in only in English or in Hindi, or a mixture of both English and Hindi, because the objective of we all coming together in this session is to understand the process. ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है और बाद में आप कहेंगे कि सर हम कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि आप इंग्लिश में बोल रहे थे. ओके, तो यू हैव टू टेल मी दैट वेदर यू वांट दिस एंटायर सेशन इन हिंदी, इंग्लिश और a mixture of both. So I'm comfortable with all these three options. Let me know and then we will start accordingly. Okay, any language is okay. Okay, good morning sir, this is a meeting for services or raw material. Tarun, this is for services vendors. Okay, it is for services. Those who provide services, it is for them. Okay. Hindi. Okay, so Priya, you said Hindi. What I'll do is to go with the audience, I will do a mixture of both the languages. Okay. तो मैं कहीं कहीं पे हिंदी में भी बात करूंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा, ताकि आप सब लोग को समझ में आ जाए कि आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए और हम क्या सीखने के लिए यहाँ जमा हुए. ठीक है. So, Tarun, if you are supplying material, then you will get confused in this session because the total process is something different in services. So, if you want, you can leave the session. For services, we have a separate session in this month. You can join at that particular point of time. Okay. Yeah. So I hope that clears your doubt. Yeah. Thank you, Tarun. Okay. So let's start the session. So हम क्या करेंगे, पहले कुछ प्रेजेंटेशन और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन पे शेयर करेंगे, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के लिए रुकेंगे. सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस वक्त अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आज का सेशन हम पूरा जेएमएस का साइकिल देखेंगे कि कैसे जेएमएस बनता है पोर्टल पे, कैसे इनवॉइस अपलोड होता है, और हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी करेंगे जिसमें आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं. आप या तो चैट पे भी लिख सकते हैं या आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. We will first run a presentation on JMS creation on Supplier First portal. The login at https://supplierfirst.rl.com. सबको पता है ये लिंक supplierfirst.rl.com. Access the Supplier First portal on any browser. The vendor can access the portal on desktop, laptop, tab और mobile phone. ओके, आप ये पोर्टल कोई भी ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप उसको गूगल क्रोम में यूज कीजिए. और आप ये पोर्टल जो है आप अपने डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, टैब पे भी कर सकते हैं और मोबाइल फोन पे भी. देखिए, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पोर्टल बना हुआ है जो आप कहाँ पे भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. यानी कि आप ऑफिस से घर जाते समय भी अगर आप बस में जा रहे हैं तो आप बस में बैठकर भी जेएमएस बना सकते हैं. आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस करके जेएमएस बना सकते हैं या इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं. तो ये फैसिलिटी हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. एंटर योर ईबीज आईडी, दैट इज योर वेंडर कोड विथ suffix 01 or 02 or whatever suffix is assigned and request for OTP. ठीक है. तो आपको आपका ईबिस का आईडी ही यूज करना है. आप हम सब पहले हम ईबिस पोर्टल यूज करते थे, राइट, एवरीवन इज अवेयर. और वहां पर हम लॉगिन के लिए वेंडर कोड और सफिक्स 01 या 02 यूज करते थे, राइट. सो अर्लियर वी वर यूजिंग ईबिस पोर्टल, एंड इन ईबिस पोर्टल वी यूज्ड टू लॉग इन
with vendor code and suffix, whatever suffix is available, 010203. Okay, so you have to use the same thing over here. You have to use your eBiz ID on this particular portal. The system will prompt for OTP option on email ID or mobile phone or both. प्लीज नोट द सिस्टम विल नॉट प्रॉम्प्ट फॉर पासवर्ड. यहाँ पे सिस्टम आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा. आपको ओटीपी चाहिए, ओटीपी कहाँ चाहिए, आपको ईमेल आईडी पे चाहिए ओटीपी, या मोबाइल फोन पे चाहिए, या दोनों पर चाहिए. तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जब आपको ओटीपी आएगा आप उससे लॉगिन कर सकते हैं. तो हर वक्त जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको ओटीपी के साथ ही लॉगिन करना है. सो रिमेंबर एवरीबॉडी, your login is your eBiz ID only. That is your vendor code with suffix 010203, whatever is available. And there is no password. It will ask you for OTP, and with the OTP only you can log in into the system. अब आप समझेंगे कि ये हमने ये नया पोर्टल क्यों डिजाइन किया. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग दिस न्यू पोर्टल, राइट. हम पहले ईबिस पे काम करते थे, लेकिन ईबिस में थोड़े कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे. ब्राउजर में थोड़ा प्रॉब्लम था. जैसे जैसे ब्राउजर अपग्रेड हो गए तो हम उस पर्टिकुलर ईबिस पोर्टल पे हमें एरर आने लगे, तो वो कंफर्टेबल नहीं था बाकी ब्राउजर्स के साथ में. तो हमने क्या किया है, हमने सारे पेन पॉइंट्स, यानी कि हमने वेंडर्स को इकट्ठे किए हैं, रिलायंस के एम्प्लॉयज सबको इकट्ठे किए हैं, और उन सबसे पेन पॉइंट्स हमने जमा किए, यानी कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी पोर्टल पे. So the objective of coming up with this portal was, we gathered all the vendors, we gathered all the Reliance people together, and we found out what are the pain points. Based on the pain points, what we did, we came up with this particular new portal. तो उसी बेसिस पे हमने ये नए पोर्टल डिजाइन किए. The procurement platform specially designed for suppliers, where they can access, view, modify their orders, create JMS and take part in invoice related activities. यानी कि ये एक सिंगल पोर्टल में आप सब काम कर सकते हैं. आप अपने परचेज ऑर्डर देख सकते हैं, जेएमएस बना सकते हैं, पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी आपको करना है आप सब इस पर्टिकुलर पोर्टल पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं. The platform equips every vendor with all tools required for smooth, interactive and seamless procurement experience. ये प्लेटफॉर्म इतना सिंपल और इजी बनाया है कि आपको आप जैसे उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आपको सब पता चलेगा कि ये टैब में मुझे क्या ऑप्शन आएगा, ये पर्टिकुलर टैब में मुझे क्या दिखेगा. यानी कि ये पोर्टल इतना सिंपल और इजी बनाया है कि आप पोर्टल के अंदर लॉगिन करके ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है, कैसे इस पोर्टल पे काम करना है. The new design architecture implements the supplier first portal, enable the user discover a seamless and intuitive experience. ये टोटली एक अलग एक्सपीरियंस है. अगर आप कंपेयर करेंगे ईबिस के साथ या कोई और पोर्टल के साथ, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना सिंपल और इजी पोर्टल डिजाइन किया हुआ है. इसमें हमने क्या क्या फीचर्स डाले हैं. इजी एंड एनहांस सिक्योरिटी फॉर लॉगिन. सबसे पहला, लॉगिन का हमने सिक्योरिटी एकदम अलग से कर दिया है, जहां पर आपको अभी ओटीपी के साथ लॉगिन करना है, पासवर्ड आपको नहीं पूछेगा. पहले हम क्या करते थे, ईबिस पोर्टल पे हम पासवर्ड सेंटर करते थे, राइट. अब हमने उस पोर्टल को ऐसे डिजाइन किया है कि आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको अपने मोबाइल फोन पे आएगा या ईमेल आईडी पे आएगा या दोनों पर आएगा, और आपको उसी से ही लॉगिन करना है. तो जब भी आपको लॉगिन करना है आपको ओटीपी से ही करना है. ओपन सोर्स platform. What do you mean by open source platform? This platform is developed in such a way that we can customize, make changes in the application. पहले के क्या होता था कि अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर हम खरीदते हैं तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन थी. ठीक है, हम उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. अब ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में बना है, जिसमें हम अगर हमें कुछ ऐड करना है फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना है तो हम पोर्टल पे चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और ये हमें बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से चेंज करने का ऑप्शन देते हैं. सो दिस पोर्टल इज डिजाइन इन सच अ वे दैट वी कैन कस्टमाइज द एप्लीकेशन whenever we require. Okay, so it is very simple and easy for us to customize this particular portal. Supported by multiple web browser, works on Edge and Chrome.
ओके, तो ये कोई भी ब्राउजर पर चलेगा। पहले प्रॉब्लम होता था ईबिस पे, हम अगर गूगल क्रोम पे काम करते थे तो हमें ऐसा इश्यूज आता था। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये ब्राउजर मल्टीपल ब्राउजर्स पे काम करता है, और आपको इस पर्टिकुलर कोई भी ब्राउजर पे आप काम करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडर्न एज यूआई, इंट्यूटिव स्क्रीन, इजी टू अंडरस्टैंड लेबल, यानी कि हर एक स्क्रीन इतना सिंपल और इजी है, और हमने उस पे लेबल्स इतने सिंपल डाले हैं कि आप लेबल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ओके यहाँ पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्विक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड टाइम ऑफ लेस देन 3 सेकेंड। आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेस देन 3 सेकेंड्स पे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे तुरंत लेके जाएगा। उसका स्पीड अगर आप रिस्पॉन्ड टाइम देखेंगे तो बहुत ही लेस देन 3 सेकेंड है। एनहेंस सर्च, सर्च बाय परचेज ऑर्डर नंबर और वर्क ऑर्डर नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन एंड इनवॉइस नंबर। आप सर्च फैसिलिटीज हैं, आपको जो भी सर्च करना है आप सर्च पोर्टल पे सर्च कर सकते हैं। यू कैन सर्च बाय परचेज ऑर्डर नंबर, डिस्क्रिप्शन और इनवॉइस नंबर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखाने में लगता जयपाल जी, आप वीडियो बंद कर दीजिए और म्यूट करिए सर। थैंक यू। So there is a search facility where you can search whatever details you want. Okay, status of the JMS. You can also find out the status of the JMS. कहाँ पर पेंडिंग है? If you want to know where your JMS is pending, whether it is pending with A1, whether it is pending with A2, whether it is pending with A3, whether it's pending for QSD, whether it is pending for invoice upload, you can find out, you can track where your JMS is pending. Okay, so these are some features which we have added in this particular portal. Okay, so let's do a demo. Actually, we will do a demo and I'll explain you in the demo how you can actually go into the portal, how you can log in, and how you can, what are the different screens available in the portal. Okay, तो अब मैं सप्लाई फर्स्ट पोर्टल में ही जा रहा हूं, पर ये जो है पोर्टल ये टेस्टिंग सर्वर है, जहां पे हम टेस्टिंग करते हैं, ट्रेनिंग के लिए डेमो करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको https://supplierfirst.rl.com पे जाना है। ये पोर्टल पे नहीं जाना है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा इंटरनल पोर्टल है, जहाँ पे हम डेमो करते हैं, जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है, पर ये सेम है। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको भी वही सब चीज दिखेगा। जब मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे भी वो सारे कुछ सेम दिखे। ठीक है, चलिए। ना यहाँ पे देखिए आपको सप्लाई आईडी पूछ रहा है। अगर आप ये स्क्रीन पे आएंगे तो इट विल आस्क यू फॉर द सप्लाई आईडी। सप्लाई आईडी में आपको ईबिस का आईडी डालना है। जो आप ईबिस में लॉगिन करते थे वेंडर कोड के साथ 01, आपको वो एंटर करना है। ट्रबल साइन, अगर आपको साइन इन करते वक्त कुछ इशू हो रहा है, अगर इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन साइन इन, देन क्लिक ऑन ट्रबल साइन इन। आप ट्रबल साइन इन पे क्लिक करके आपको वहां पे पूछेगा आपका ईमेल एड्रेस क्या है, और वो बेसिस पे आपको वो गाइड करेगा। ठीक है, हाउ टू लॉग इन, अगर आपको पता करना है कि ये लॉगिन कैसे करना है, ओके, आपको कोई जानकारी नहीं है, यू कैन क्लिक हियर। व्हेन यू क्लिक हियर, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए। अ, हम 2 मिनट रुकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग शायद दूसरे कोई लिंक में ज्वाइन हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। विल जस्ट टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक। ओके, जब तक किसी को कुछ पूछना है, एनी वन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? is this available on Play Store? नो, इट्स नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। Okay. Okay, because it's a company's internal website, it is not available on Play Store.
but you can just use it on web page and you can directly log in with the ID. Okay, noted. Yeah, thank you. Can you repeat the part for login means Google पे कैसे login करना है sir? Uh, sure. You have to go to supplierfirst.rl.com. Just a minute sir, I'll take a screenshot for this. Just can you just a minute sir. Thanks a lot sir. Taken the thing. Okay, no issues sir. Yeah. Thank you. Yeah, yeah. So we are still in the login process. We will start with the process of how to log in into the system. So we will do a practical demo so that you will understand the entire concept right from logging into the system till creation of JMS and invoice uploading. Okay. So we will cover up everything for you. So don't worry about it. Okay. Yeah. Anyone else has any questions, any doubts? Okay, so we'll just wait for another 1 minute. 11:20, we will start again. Okay. Okay, fine. So we were talking about the help document. Okay. So let me just. So when you click over here, how to log in, okay, you get that help document, which I showed you right now. I'll just show it to you again. So when you click on this, you get a help document. आपको इस तरह से help document मिलेगा, which will guide you step by step how to log in into the supply first portal. ओके, तो ये गाइड है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि अगर लॉगिन करना है कैसे करना है, पूरा प्रोसेस हमने विद स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करके रखे हैं. ओके, द लास्ट ऑप्शन इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस. ये आपको यूज नहीं करना है, ये न्यू वेंडर्स के लिए. तो एनीबडी वांट्स टू डू अ न्यू वेंडर रजिस्ट्रेशन, anybody who wants to become a registered vendor with Reliance, that is the time when they will click on sign up. Okay, so that will take them to a separate form and they will fill up that form and submit it. So that's a separate section. It is not for you. You all are registered vendor with Reliance, so you don't have to worry about it. You don't have to click on not registered with us. Okay, now let's log in into the system. So what I'll do is I will select my ID, okay, and I'll enter my ID over here. Okay, then I click on the login button. तो मैं अपना EBIS का ID डालूंगा और login button पे click करूंगा. The moment I click on login, it will ask me where you want the OTP, whether you want the OTP on your email address, on your mobile phone, or on both. Okay, so you have to select the option where you want the OTP. Say for example, I select email and I click on continue. I will get my OTP on my email address and then I will enter my OTP. Once I enter my OTP and click on continue, I will be able to log in successfully in the portal. तो हमने क्या किया, हमने OTP सेलेक्ट एंटर किया और OTP डालने के बाद जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, हम लॉगिन हो चुके. ठीक है, तो हर वक्त आपको लॉगिन करते समय आपको OTP एंटर करना है. Now there will be one question in everybody's mind that my email ID is not mapped, my mobile number is not mapped, my director's email address and mobile number is mapped. So you cannot every time run to your director for an OTP. So just hold on for some time. I will guide you on that also. What you need to do to change the IDs or change the email address and mobile.
Okay, so just hold on for some time. We will come to that. We will cover that also later on. Okay. Now, once you log in, you get profile update screen. Just click on remind me later. So when you click on remind me later, it will close that particular screen and you will come to the default dashboard. ये डिफॉल्ट डैशबोर्ड है. जब आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन नजर आएगा. Okay. Now, in some cases, you might come across with supply code of conduct. अगर आपके पास supply code of conduct का screen आता है, then I would request you to please complete that. Otherwise, it will every time when you log in, that pop-up will every time come to the screen. So if it is coming, any pop-up coming up, please complete that activity. Okay. You might also come across with anti-bribery system. ओके. इट इज अ 2 or 3 minutes वीडियो. एक इस तरह से एक पॉपअप आएगा, एंटी बाइबररी सिस्टम. एक 2-3 मिनट का वीडियो है. आप उसको देख के और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप वो क्वेश्चंस को आंसर करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आप नहीं करोगे तो आप जब भी लॉग इन करोगे तो बार बार आपको वो पॉपअप आएगा. तो जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करोगे वो पॉपअप स्क्रीन आता ही रहेगा. तो इट इज बेटर दैट इन केस इफ यू गेट एनी पॉपअप्स, प्लीज कंप्लीट दैट. ओके. Now, if I move my mouse pointer on the left hand side, I see there is a bunch of main menu. Okay. The first is procurement. Under procurement, I have two options: order management and inspection release. Order management is this particular page, the default page which you see right now on the screen. So, जब आप जैसे login करते हो, आपको by default order management का पेज नजर आता है. That is the default page whenever you log in into Supplier First portal. Inspection release ये मटेरियल सप्लायर के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है. तो आप इसको इग्नोर कीजिए. ये जो मटेरियल सप्लाई करते हैं ये उनके लिए है, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करते. द नेक्स्ट ऑप्शन इज सोर्सिंग. मान लो आपको कोई बायर इनवाइट करता है कोटेशंस सबमिट करने के लिए, RFX या ऑक्शन के लिए इनवाइट करते हैं, then you can directly come to this page and log in into the RFX Manager portal or auction. That is why this particular portal is called all-in-one portal. इसको हम all-in-one क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप एक पोर्टल पर साइन इन करते हैं और आप बाकी के एप्लीकेशंस भी यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. So we are trying to bring everything into one portal. So just logging into Supplier First portal, you can directly jump to RFX or you can directly jump to our auction also. तो आपको अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सप्लाई फर्स्ट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी के पोर्टल्स पे भी लॉगिन करा सकते हैं. ओके. देन वी हैव रिपोर्ट्स. अंडर रिपोर्ट्स वी हैव द यूनिट रेट मेजरमेंट शीट रिपोर्ट. तो अगर आपको JMS का कोई भी रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं. यू हैव टू एंटर द स्टार्ट डेट, यू हैव टू एंटर द एंड डेट, एंटर द JMS number, add purchase order number, add if it is an ARC, add, and then click on download. It will automatically download the entire report for you. तो अगर आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए JMS के रिलेटेड रिपोर्ट, you can access all the reports from here itself. Okay. Then we have self-service. Under self-service, there are two options: TCS/TDS and debit mode. तो अगर आपको कोई भी TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, you have to select the assessment here from the drop down. Okay, and there will be a download option over there. You can click on that download option. It will download that TDS certificate in PDF format. Debit note, any specific debit note is required. You can search by invoice number or purchase order number for last 7 days, 30 days, 3 months or 1 year. तो अगर आपको कोई भी डेबिट नोट डाउनलोड करना है तो आप सर्च कर सकते हैं इनवॉइस नंबर या परचेज ऑर्डर नंबर से, और लास्ट 7 डेज, 30 डेज, 3 मंथ्स या 1 साल, तो 1 साल तक का डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा. आपको जब भी चाहिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. जैसे ये स्टार्ट होगा तो इसके बारे में हम आप लोग को बता देंगे. ओके. लेट्स कम बैक टू ऑर्डर मैनेजमेंट.
Okay. Now, order management में सबसे टॉप में there are four important tabs. One is orders, shipment, measurement sheet and payment. तो सबसे पहले ये चार टॉप मेनूज आपको टैब्स दिखेंगे, जो है ऑर्डर्स, शिपमेंट, मेजरमेंट शीट और पेमेंट. ओके. ऑर्डर्स के अंदर आपको क्या नजर आएगा? और न्यू ऑर्डर्स, ऑर्डर इन प्रोसेस, एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड सीसीआर डॉक. न्यू ऑर्डर्स मतलब जब भी आपको रिलायंस की तरफ से कोई नया परचेज ऑर्डर आता है, आपको वो डिटेल्स यहाँ पर नजर आएगा. Okay, so any new order or any purchase order or work order which you get from Reliance will be available under new orders tab. यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? Order number, date, revision, ordering company, with which company it is, Reliance Industries or Reliance Jio or some other company of Reliance. Order amount, what is the amount? ARC number in case if it is an ARC, and number of items, how many items are there in that particular purchase order. तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स नजर आएंगे उस पीओ के, जहाँ पे आपको पूरा ऑर्डर नंबर, जो परचेज ऑर्डर नंबर क्या है, डेट है, रिवीजन कौन सा रिवीजन का है, और ऑर्डरिंग कंपनी और अमाउंट कितना है, उस परचेज ऑर्डर का वैल्यू क्या है, एआरसी नंबर अगर वो एआरसी से रिलेटेड है, और कितने आइटम्स उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर में है. अब आपको ओपन करना है तो क्या करेंगे? आप वो परचेज ऑर्डर को क्लिक कर सकते हैं. इफ यू वांट टू ओपन द परचेज ऑर्डर, यू कैन क्लिक ऑन द परचेज ऑर्डर और यू कैन क्लिक ऑन द आई आइकन. आपको ये आई आइकन दिख रहा है, तो आप या तो आई आइकन पे क्लिक कीजिए या वो परचेज ऑर्डर के नंबर पे क्लिक कर सकते हैं. जैसे हम क्लिक करेंगे, आपको परचेज ऑर्डर नंबर नजर आएगा. ओके. डेट, which date that purchase order was created, revision date, buyer का नाम, buyer का email address आएगा, payment terms, what is the payment terms, and status, overdue for acknowledgement. Okay, so इस तरह से आपको header details में आपको ये सारी details नजर आएंगी. If you click on the right hand side of attachment, then you will see all the attachments which are made in the purchase order. तो जितने भी उस पीओ के अंदर जो भी अटैचमेंट है, सप्लाई कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जिबिट बी, एग्जिबिट डी, एग्जिबिट एफ, एग्जिबिट जी, टेक्निकल ऑफर, पीओ नंबर, आपको लास्ट में पीओ नंबर भी नजर आएगा. सो एवरीथिंग वट एवर इज अवेलेबल इन द अटैचमेंट्स यू कैन डाउनलोड. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज download the purchase order, download all the necessary documents and go through it. 90% of the vendors, they don't download the PO, they don't look at the PO. So वो लोग PO रीड भी नहीं करते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना है, उनकी बिलिंग कैसे होगी. तो अगर आपको ये सब चीज जानना है, आपको परचेज ऑर्डर डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है कि रिलायंस में क्या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, हमें कितना सर्विसेज करना है, और हमारी बिलिंग जो है ये कैसे होगी, पर आवर बेसिस पे है, पर डे बेसिस पे है, पर एक्टिविटी के बेसिस पे है, पर मंथ पे है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है. सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ बिलिंग इन सर्विसेज. सो यू हैव टू रीड योर परचेज ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, okay, you can click on this arrow key to expand. There are 3 items and you will be able to see all the 3 items. ओके. तो आपको तीनों आइटम नजर आएंगे. आपको आइटम कोड नजर आएगा, सर्विस कोड नजर आएगा, क्वांटिटी नजर आएगा, जीएसटी परसेंटेज एंड द टोटल अमाउंट. ओके. टोटल अमाउंट में इफ यू क्लिक ऑन द आई आइकन, देन इट विल टेल यू व्हाट इज द बेस अमाउंट एंड व्हाट इज द जीएसटी अमाउंट. ओके. तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपका बेस अमाउंट कितना है और जीएसटी अमाउंट कितना है. ओके. इफ यू स्क्रॉल डाउन, इट विल टेल यू द टोटल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. Okay. On the right hand side over here, these are called as navigation panes. ये navigation pane है. यानी कि अगर मान लो आपका परचेज ऑर्डर 10-15 पेजेस का है, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, राइट, नीचे जाने के लिए. तो मान लो आपको डायरेक्टली ग्रैंड टोटल पे जाना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ग्रैंड टोटल, इट विल ऑटोमेटिकली स्क्रॉल एंड टेक यू टू ग्रैंड टोटल. सो इफ यू वांट टू जंप टू अ स्पेसिफिक location of the purchase order, you can use these navigation pane. तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक परचेज ऑर्डर में कहीं जाना है, तो जैसे कि मैंने आइटम डिटेल्स पे क्लिक किया, तो वो सीधा मुझे आइटम डिटेल्स पर लेकर जाए.
ओके, तो कभी कभी आपको परचेज ऑर्डर होता है ना, 10-15 पेजेस का परचेज ऑर्डर होता है, आपको कुछ चीजें ढूंढनी पड़ती है, तो आप ढूंढने से अच्छा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑर्डर, सबसे पहली चीज, you have to accept the order. Okay, acknowledge the order. Okay, we will not acknowledge it, we will just click on back to come out of it. Okay, this is all about new purchase or whatever the new orders which you get from Reliance. Coming to order in process. Order in process में क्या होता है, जब आप परचेज ऑर्डर को एक्नॉलेज करते हैं तो वो ऑर्डर इन प्रोसेस में आता है। या आपने एक जेएमएस बनाया है या एक से ज्यादा जेएमएस बनाया है, तो दैट विल कम इन ऑर्डर इन प्रोसेस। Okay, so here also if you see there are in this, if I click on this drop down arrow key, okay, there are 152 items in this particular purchase order, so it will contain everything regarding the purchase order. Okay, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये ऑर्डर, दूसरा कोई ऑर्डर देखते हैं। okay, ये वाला देख लेते हैं। okay, so it will tell you the order number, date, revision, ordering company, ordering amount, number of items. There are 3 items. Okay, let's try and see some other orders. Okay, what I'm trying to search is that there are certain orders जिसमें हमने जेएमएस बनाया है पहले। ओके, तो अगर हमने जेएमएस बनाया है तो वहां पे आपको वो डिटेल्स भी नजर आएगा। इफ यू हैव क्रिएटेड जेएमएस, then you will be able to see the details also, like over here. Yeah, see it. For this order, the measurement sheet was created. JMS was पहले एक JMS बना चुके हैं हम। Okay, what was the JMS number, the invoice number, the invoice date, how much you had claimed, how much was verified. तो ये पर्टिकुलर स्क्रीन में आपको पता भी चलेगा कि पहले हमने कितने जेएमएस बनाए थे, कितने उसमें से जो क्वांटिटी है वो एक्सेप्ट हुए थे, वेरीफाई हुए थे, अप्रूव हुए थे। ओके, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑर्डर इन प्रोसेस। Now there are two important icon which are there. One is filter and download. ये दोनों आइकन जो है आपको हर पेज पे मिलेगा, जो भी पेज पे आप जाएंगे आपको ये फिल्टर और डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा। फिल्टर क्या करता है, आपको जो डैशबोर्ड पर देखना है आप उसके हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन फिल्टर। जैसे हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला वो पूछता है, यू वांट टू फिल्टर विथ मटेरियल और सर्विसेज। आपकी कंपनी मटेरियल भी सप्लाई करती है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लेकिन आप जो है आप सिर्फ सर्विसेज के इंचार्ज है, मटेरियल के इंचार्ज नहीं है। तो यू ओनली वांट टू सी सर्विसेज परचेज ऑर्डर, तो यू कैन मेक अ टिक मार्क ऑन सर्विसेज परचेज ऑर्डर। यू कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू कंपनी, ऑर्डरिंग कंपनी। ओके, यहाँ पे तो एक ही कंपनी है, अगर मल्टीपल कंपनीज है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस जियो, तो आप उसको उसके हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। यू कैन फिल्टर इट बाय शिप टू लोकेशन। आप सिर्फ सूरत के इंचार्ज है तो यू ओनली वांट टू सी सूरत परचेज ऑर्डर, आपको बाकी के लोकेशन का नहीं देखना है, बिकॉज यू आर ओनली इंचार्ज ऑफ सूरत। ओके, द अदर पर्सन इज इंचार्ज ऑफ जामनगर, सो ही विल टेक केयर ऑफ जामनगर। तो यू कैन कस्टमाइज योर स्क्रीन, you can filter your screen based on what you want to see on your screen. आपको जो डैशबोर्ड में देखना है आप उसी से ही उसी तरह से देख सकते हैं। The next option is download। वेंडर्स ने हमें कंप्लेंट किए थे पहले कि सर हम ये सारी चीज़ें ना एक्सेल में चाहते हैं, क्योंकि हमें अपना रिपोर्ट्स बनाना होता है, कभी कभार हमको अपना चेक करना होता है कि हमने कितने जेएमएस बनाए एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में और उसका स्टेटस क्या है। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन डाउनलोड, immediately it gets downloaded in Excel format, and when I open the Excel format you will be able to see everything in the Excel sheet। ये देखिए पूरा का पूरा पेज जो है वो एक्सेल शीट में आ गए हैं। सो हियर यू हैव ऑर्डर नंबर, डेट, रिवीजन, ऑर्डरिंग कंपनी नेम, ऑर्डरिंग आइटम, कितने आइटम है परचेज ऑर्डर में, दिस इज फॉर मटेरियल, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट रेट, बेस प्राइस, जीएसटी अमाउंट, टोटल अमाउंट, करेंसी, क्वांटिटी, सप्लाइड, अगर आपने ऑलरेडी कुछ जेएमएस बनाया है तो आपने ऑलरेडी क्वांटिटी सप्लाई किया है, राइट, क्वांटिटी इन प्रोसेस, शिप टू लोकेशन। तो
everything is put into an Excel sheet. अब आप अपना जो भी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं आप वो यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज these reports to make your own, you can use this sheet to make your own reports, and then you can present it with your manager, or you will come to know how much JMS is spending, against which particular purchase order amount is spending or quantity is spending, and so on. So the filter and download option is available in all the tabs. Coming down to the third option is the annual rate contract, that is the ARC. तो जब आपको ARC मिलता है तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर नजर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट डेट, रिवीजन, ordering company, validity start date, validity end date, and the contract amount and the number of items. ओके, सो जब भी आपको कोई ARC मिलेगा आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं. प्रोसेस सेम है, आपको अगर उसके ARC में जाना है तो आपको उस ARC नंबर पे क्लिक करना है और आपको सारे डिटेल्स नजर आएंगे. ओके, यू हैव द ऑप्शन टू चेक एवरीथिंग इन द ARC. The next tab is CCR document. CCR documents आप लोग के लिए नहीं है, ये मटेरियल सप्लाई के लिए है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं. नेक्स्ट टैब इज शिपमेंट टैब. शिपमेंट टैब भी सप्लायर के लिए है जो मटेरियल सप्लाई करते हैं. वी विल गो टू मेजरमेंट शीट टैब. ओके, द थर्ड ऑप्शन विच इज मेजरमेंट शीट टैब. नाउ इन दिस you will be able to see all your JMS status and everything, whatever the status है. अगर आपको पता करना है कि स्टेटस क्या है JMS का, कहाँ पेंडिंग है, A1 के पास पेंडिंग है, A2 के पास पेंडिंग है, QSD के पास पेंडिंग है, या इनवॉइस अपलोड के पास पेंडिंग है, everything you can track on this particular sheet. It is classified into 3 tabs. For the 3 tabs: measurement sheet in process, manpower contract claims, and ready for invoice submission. मेजरमेंट शीट इन प्रोसेस में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये स्टेटस क्या है, पेंडिंग कहाँ पर है. पेंडिंग फॉर A1 अप्रूवल, पेंडिंग फॉर A2 अप्रूवल. सो यू कैन ट्रैक एंड चेक योर JMS status over here. You can filter also and you can download the page also. Okay, suppose if I filter it and I want to know if you have saved the JMS in draft. अगर आपने JMS को ड्राफ्ट में सेव किया है, देन आई कैन ओनली चेक ऑल द ड्राफ्ट ASN. ये सारे JMS हैं, ये सब ड्राफ्ट में सेव्ड है. तो अगर आपने ड्राफ्ट में सेव किया, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द पेन आइकन. व्हेन यू क्लिक ऑन द पेन आइकन, आपका JMS दोबारा ओपन हो जाएगा और आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं. ओके, सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू कंप्लीट द JMS और यू वांट टू डिलीट द JMS. Drafted JMS you can delete it. Okay, so measurement sheet in process has the option to check what exactly the status of your JMS is. Here it is showing pending with A3, somewhere it will show pending with A1, somewhere it will show pending with A2. तो आप ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका JMS स्टेटस कहाँ पे. See, this is pending with A1. Okay. देखिए, ये टेस्टिंग सर्वर है तो यहाँ पे कभी कुछ चीजें बराबर नहीं दिखती है. मतलब आप सोचेंगे कि इतने सारे JMS पेंडिंग है, क्योंकि ये सब टेस्टिंग है. हम लोग टेस्टिंग करते हैं या डेमो करते हैं, तो इसलिए वो इतना सोच यहाँ पे नजर आता है. पर आप जब लॉग इन करोगे आपके पोर्टल पे, आप अपने आईडी से, तो आपको प्रॉपरली आपके सारे डिटेल्स नजर आएंगे. ओके, यू कैन सर्च बाय ऑर्डर नंबर और मेजरमेंट शीट ऑल्सो. सेकेंड इज मैन पावर क्लेम. ये मैन पावर के लिए हम इसमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे, रेडी फॉर इनवॉइस सबमिशन. जब आपका JMS अप्रूव होता है और आपको इनवॉइस अपलोड करना है, देन यू हैव टू कम टू दिस पर्टिकुलर पेज एंड अपलोड योर इनवॉइस. तो कैसे करते हैं, आई विल शो इट टू यू लेटर ऑन, बट दिस इज द पेज वेयर यू कैन अपलोड योर इनवॉइस. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके यूनिट रेट पे सेलेक्ट करना है. ओके, और यहाँ पे आपको सारे अप्रूव्ड JMS. देखिए, प्रोसेस वही रहेगा जो पहला था. जब आप JMS बनाते हो तो A1 के पास जाता है, A2 के पास जाता है, QSD के पास जाता है. जैसे QSD अप्रूव करता है, आपको एक मेल आता है कि आपका JMS अप्रूव हुआ है, अब आप इनवॉइस अपलोड कीजिए. और आप इनवॉइस अपलोड करते हैं तो
इंटायर प्रोसेस इज द सेम। प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ पोर्टल चेंज हुआ है, बाकी सब सेम ही है। जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करना है। पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो जो आपको पहले बायर ने या A1 ने बताया है वही आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, सिर्फ पोर्टल चेंज हुआ है, द रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम। So how you upload the invoice, we will come to that later on. Okay. Next tab is the payment tab. अब पेमेंट टैब में कैसा है, वेंडर्स कंप्लेन करते थे कि हमें पेमेंट की डिटेल्स नजर नहीं आती, कि हमारा पेमेंट कहाँ पर है, कि क्या है, मतलब उनको कोई पेमेंट का डिटेल्स, पेमेंट ट्रैकिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता। सो हमने यहाँ पे अलग से टैब बनाया है पेमेंट्स का। इन दैट यू हैव फर्स्ट ऑप्शन इज डिफेक्टिव इनवॉइस। अगर आपका इनवॉइस डिफेक्टिव है तो आप वो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको रीसबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पहले रीजन पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड चेक व्हाट इज द रीजन व्हाई योर जीएमएस हैज बीन डिफेक्टिव। ओके, तो आप यहाँ पे उसको रीसबमिट का भी ऑप्शन है, ये पेन आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो रीसबमिट करने का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, इन प्रोग्रेस, पेमेंट इन प्रोग्रेस। Okay, so it will tell you what is the status of your payment. Like here, this is payment held. Why it is held? Click on the I icon. आपको बताएगा कि आपका पेमेंट क्यों उन्होंने रोक के रखा है। ओके, आपने कुछ चीजें कंप्लीट नहीं की है, कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया है। ओके, समटाइम्स यू विल गेट पेमेंट स्टेटस में पेमेंट नॉट ड्यू। आपका अभी तक पेमेंट ड्यू नहीं हुआ। एज पर योर परचेज ऑर्डर, द पेमेंट विल बी डन आफ्टर 30 days of submission of invoice, 45 days of submission of invoice, 90 days of submission of invoice। तो आपके परचेज ऑर्डर के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से पेमेंट होगा। तो अभी तक वो पेमेंट ड्यू नहीं हुआ, इसलिए वो यहाँ पे स्टेटस बता रहा है पेमेंट नॉट ड्यू। ओके, तो यहाँ पे एक और आएगा इनवॉइस अंडर प्रोसेसिंग। अभी वो प्रोसेसिंग में है। यू कैन क्लिक ऑन द आई आइकन एंड यू कैन चेक व्हाट इज द डिटेल्स। तो ये प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस में आपको सारा कुछ डिटेल्स नजर आएगा। द नेक्स्ट इज पेमेंट हिस्ट्री। यू कैन ट्रैक द पेमेंट हिस्ट्री फॉर लास्ट 7 days, 15 days एंड 30 days। तो आपको जब भी पेमेंट ट्रैक करना है आप यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में आके ट्रैक कर सकते हैं। देन यू हैव रिटेंशन, ओपन एडवांस। अगर आपने कोई एडवांस लिया है, काम स्टार्ट करने से पहले आपने रिलायंस से कुछ एडवांस लिए, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे नजर आएंगे। सर लास्ट 7 days, 15 days, 30 days एंड डेबिट बैलेंस, एनी स्पेसिफिक डेबिट बैलेंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। ओके, तो आपको जो भी पेमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको ये पेमेंट टैब पे मिल जाएगी। ओके, ऊपर यहाँ इफ यू सी ऑन द टॉप ओवर हियर, यहाँ पे एक सर्च क्राइटेरिया है जहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको तुरंत वो पर्टिकुलर इनवॉइस के डिटेल्स नजर आएंगे। तो ये एक सर्च फैसिलिटीज हमने डाला है, वे यू कैन एंटर द इनवॉइस नंबर एंड यू कैन सर्च एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज important, that you want to make any changes in your profile। ओके, आपको प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना है। मान लो आपका कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया है, ओके, या आपको जीएसटी ऐड करना है या कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आप लॉग इन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल फोन नंबर है वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, आपके डायरेक्टर का है, आपको सीईओ का है, और हर वक्त आप सीईओ के कैबिन में जाके उनसे ओटीपी नहीं मांग सकते। तो आपको अपने डिटेल्स अपडेट करने हैं। इन दैट केस click on the right hand side top where your company name is appearing and click on my profile। जैसे आप my profile में जाएंगे यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ओके, योर पैन कार्ड डिटेल्स, योर जीएसटी, योर कंपनी एड्रेस, योर कंपनी प्रोफाइल, एवरीथिंग विल बी विजिबल ऑन दिस पर्टिकुलर टैब। आपका पूरा फॉर्म ओपन होगा, आपको जो भी चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। ओके, अभी लोड हो रहा है, जैसे लोड हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ऊपर कंपनी का नाम है, एड्रेस है। ओके, आपको क्या क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यू हैव टू गो टू एडिट प्रोफाइल। द मोमेंट यू क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल देन यू कैन मेक व्हाटएवर चेंजेस यू वांट। ये देखिए ये जीएसटी का है, रजिस्टर एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया है। यहाँ पे पैन कार्ड
पैन कार्ड हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर आपको कुछ अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हो। बैंक डिटेल्स, ओके, पहले आपका बैंक डिटेल जो था वो HDFC बैंक में था, अभी ICICI हो गया है। HDFC का अकाउंट आपने क्लोज कर दिए, तो इन केस इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द बैंक अकाउंट, यू कैन ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गए। ऐड कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए कि ये जो कंसर्न पर्सन है अभी आपकी कंपनी छोड़ के चले गई, अभी वो हमारे साथ काम नहीं करती है, सो यू कैन क्लिक ऑन एडिट and you can remove her name and you can add your name, your contact number and email address and click on save। ओके, तो आप इस तरह से चेंजेस जो करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं पोर्टल पे। एंड आफ्टर मेकिंग ऑल द चेंजेस, जो भी आपने चेंजेस किया है उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स टू रीड एंड एक्सेप्ट द डेटा प्राइवेसी पॉलिसी। आप देखेंगे यहाँ पे सबमिट बटन है, लेकिन मैं वो सबमिट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? जब तक मैं ये चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करूंगा मुझे डेटा प्राइवेसी पॉलिसी नजर नहीं आएगा। आई हैव टू क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट और फिर आपको सबमिट बटन नजर आएगा, तभी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल में जाके, जो भी आपको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, ओके, एक्सेप्ट द डेटा प्राइवेसी पॉलिसी, और फिर आप सबमिट करेंगे तो आपने जो भी चेंजेस किया है आपके पोर्टल पे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा बैकएंड टीम को, और वो लोग चेंजेस कर देंगे। ओके, आई विल नॉट मेक एनी चेंजेस, आई विल कैंसिल एंड क्लिक ऑन बैक टू कम आउट ऑफ इट। Now, one last option which is left in this demo is that in case you require some help, okay, आपने अभी सेशन तो अटेंड कर दिया, आपने प्रोसेस पूरा समझ लिया, पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी। In that case, you can click on the help option which is on the top. Once you click on the help option, the first option you get FAQs. कुछ FAQs है, अगर आपके वो काम के हैं तो आप उसको रीड कर सकते हैं। ओके, इट इज समथिंग पर्टेनिंग टू JMS, यू कैन रीड दोस FAQs। अगर आप यूजर गाइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे हेल्प डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। whatever help documents you require, if it is something related to supplier first portal, तो यहाँ पे supplier first portal के अंदर JMS का जो भी help documents है वो यहाँ पे available है। You can download it in PDF format. Auction, suppose if you have received an auction from a buyer, you are invited for an auction, you can click on the auction and you can download the help document. RFX help documents available over here. RCMS compliance document आपको अगर डालना है, कैसे डालना है, यहाँ पे 4 वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हैं, आप उसको डाउन देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कंप्लायंस डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाते हैं। Okay, so make sure that you use this particular option for your support, or for you want to refer something, you can always use these help documents from the portal। Okay, now coming to one important thing, आपको तो अभी समझ में आ गया है JMS कैसे बनाना है, इनवॉइस अपलोड कैसे करना है, और आप JMS बना रहे हो और सडनली आपको कोई एरर आता है स्क्रीन पे। Okay, when you're creating an JMS or uploading your invoice, you get some error, you get some problem, what you need to do, you can click on raise a ticket। हेल्प के अंदर FAQs के हेल्प में जैसे जाओगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रेज अ टिकट है, आप टिकट रेज कर सकते हैं। वहां पे टिकट में आपको क्या करना है, 1 लाइन डिस्क्रिप्शन डालना है, एरर इन JMS क्रिएशन। डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन करना है आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एरर स्क्रीन अटैच करना ही जरूरी है, बिकॉज आपका एरर स्क्रीनशॉट से हमें पता चलता है कि आपको इशू क्या एग्जैक्टली आ रहा है। आपको आपका वेंडर कोड, परचेज ऑर्डर नंबर, JMS नंबर, इनवॉइस नंबर, जो भी डिटेल है आपको वो हर एक टिकट पे मेंशन करना है। आप सिर्फ एक लाइन डाल के मत टिकट रेज कीजिए, एरर इन JMS, लेकिन आपको क्या एरर आ रहा है, आपका वेंडर कोड क्या है, आपका PO नंबर क्या है, आपका इनवॉइस नंबर क्या है। अगर आपका स्क्रॉल नंबर जनरेट नहीं हुआ तो मुझे आपका इनवॉइस नंबर से ही मुझे पता करना पड़ेगा ना कि स्क्रॉल नंबर क्या है। सो वी रिक्वायर डिटेल्स व्हेनेवर यू रेज अ टिकट, वी रिक्वायर दो डिटेल्स, बेस्ड ऑन दो डिटेल्स ओनली आई कैन ईदर रिजॉल्व द टिकट और आई कैन एस्केलेट इट टू द नेक्स्ट लेवल।
तो जब तक आप हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो प्लीज मेक श्योर दैट व्हेन यू रेज अ टिकट, you provide all the necessary information, and then only we will be able to provide you a proper solution, or we will escalate it to the next level if required. तो कुछ चीजें जो है अगर हम रिजॉल्व नहीं कर सकते तो हमें नेक्स्ट लेवल पे उसको एस्केलेट करना पड़ता है। Okay, clear? So what we have done now is we have gone through the entire portal and we have learned everything about this portal. Now it is time for us to create JMS and upload invoice. Before I go into that, you have any questions about the portal? अभी तक हमने जो भी कवर किया है, आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? So everyone clear? Great. Wonderful. Okay, fine. Let's. Hello. Yeah. Sir, Yeah. so I have one question actually. Yeah. So we are from Reliance Rescue. So we provide we supply materials. So we want to know detail about that shipment tab. See, for material we have a separate session, so you can join for that. I'll put an email address. You can write an email to me. We will share with you the calendar and for creating ASN for material. So you can join that particular session. Okay. Okay, sir. Yeah, I put the email ID pnc.helpdesk@ri.com. Okay. Yeah. फाइन, लेट्स स्टार्ट विद जेएमएस। चलो अभी हम पहले जेएमएस के बाद थोड़ा बहुत जेएमएस के बारे में डिटेल्स जानेंगे और फिर हम जेएमएस क्रिएट करेंगे। ओके, व्हाट इज जेएमएस? इंट्रोडक्शन टू जेएमएस। ओके, व्हाट इज जेएमएस? जॉइंट मेजरमेंट शीट। इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज वर्क मेजरमेंट। ओके, यू आर मेजरिंग द वर्क, व्हाटएवर वर्क इज असाइन्ड टू यू. It is to facilitate accurate and timely measurement of the quality and quantity of the work done. मतलब आपने कितना काम किया, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों चीज जेएमएस में कैप्चर होता है. इन अदर वर्ड इट इंडिकेट्स एग्रीमेंट बिटवीन द वेंडर एंड द यूजर ऑन द वर्क डन. ओके, तो हम दोनों पार्टी के बीच में एक ऑर्डर हमने प्लेस किया है, तो दोनों पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. रिलायंस ने आपको कुछ काम बोला है करने के लिए, आपने वो काम कर दिया है, इसके वजह से आप उसको जेएमएस में डाल रहे हैं. ओके, the JMS system is an electronic interlink between you and the user wherein work measurement is posted and certified through the system interface. तो आप क्या करते हैं? सिस्टम में जेएमएस बनाते हैं. आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है. ओके, मैन्युअली कुछ नहीं करना, आपको जेएमएस सिस्टम पे बनाना है एंड इट गेट्स सर्टिफाइड. वो सर्टिफाई होता है, A1 के पास जाता है, A2 के पास जाता है, ये सब अप्रूव करते हैं. ओके, ये सब सिस्टम के थ्रू होता है, कोई मैन्युअल वर्क नहीं होता है. Further tracking of the flow process at any point of time can be done by both the system user regarding the status of the work measurement. यानी कि आप भी ट्रैक कर सकते हैं आपका जेएमएस कहाँ पेंडिंग है. You can find out where exactly your JMS is pending. और रिलायंस के अंदर भी वो लोग ट्रैक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका जेएमएस कहाँ पेंडिंग. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको ध्यान रखना है जेएमएस बनाते समय. The first rule says the JMS period should be in between validity period of order. देखो, जेएमएस बनाते समय हम स्टार्ट डेट और एंड डेट डालते हैं, यानी कि हमने काम कब शुरू किया, काम कब खत्म किया. Right? Now these dates should be within the PO dates. ये PO dates के अंदर होना चाहिए, PO date से बाहर नहीं होना चाहिए. एक एग्जांपल देता हूँ आपको एक परचेज ऑर्डर मिला है जो 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक का आपको एक परचेज ऑर्डर मिला है. तो जब आप जेएमएस बनाते हैं तो आपका जो जेएमएस डेट्स है वो इन डेट्स के अंदर होना चाहिए. ओके, आई कैन नॉट क्रिएट अ जेएमएस फ्रॉम 1 Feb 2025. क्यों? क्योंकि मेरा परचेज ऑर्डर ही 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो मैं फेब का 2025 का डेट नहीं ले सकता. राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द जेएमएस स्टार्ट डेट एंड डेट इज विदिन द PO dates. Second, concerned name has to be selected while posting the JMS. Very important. आप
आपको A1 का नाम सेलेक्ट करना है और करेक्ट आदमी का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आप मेरा नाम सेलेक्ट करोगे, आई एम नॉट द कंसर्न पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू अप्रूव इट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको या तो वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा या रिजेक्ट कर दूंगा। अगर रिजेक्ट करूंगा तो आपको फिर से जेएमएस बना, रिटर्न करूंगा तो फिर वापस आपके पास आएगा, फिर आपको दोबारा ये प्रोसेस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो आप बनाने से पहले आपको चेक करना है ये सब चीजें कि आपका A1 कौन है और जो आपके जेएमएस को अप्रूव करने वाला है। थर्ड पॉइंट, द ई इनवॉइस कैन बी क्रिएटेड एंड सबमिटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ जेएमएस बाय क्यूएसडी। यानी कि जब क्यूएसडी आपका जेएमएस अप्रूव करता है तब आप इनवॉइस अपलोड करते हैं। तो पहले आप जेएमएस क्रिएट करते हैं, वो A1 के पास जाता है, A1 अप्रूव करता है, फिर A2 के पास जाता है, वो अप्रूव करता है, फिर क्यूएसडी के पास जाता है। जब क्यूएसडी अप्रूव करता है उसके बाद आपको एक ईमेल आता है कि आपका जेएमएस अप्रूव हुआ और फिर आप इनवॉइस अपलोड करते हैं। In case of JMS returning from A1, make sure to do the changes as per the observation of A1 and take action accordingly on priority. Very important. आपका JMS रिटर्न हुआ, अगर आपको पता ही नहीं है तो वो आपके पास ही पड़ा रहेगा। फिर 10 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा JMS तो रिटर्न हुआ था, राइट? तो यू हैव टू टेक एक्शन, आपको ट्रैक करना है। अगर वो रिटर्न हुआ है तो इमीडिएटली आपको उसको चेक करना है कि वो रिटर्न क्यों हुआ है और वो करेक्ट करके एक्शन लेना। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो आपके पास ही पड़ा रहेगा और वो डिले हो जाएगा। तो ये छोटी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अभी हम जेएमएस क्रिएट करते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट अ जेएमएस। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर इन प्रोसेसिंग में जाएंगे। यू हैव टू फर्स्ट गो टू ऑर्डर इन processing. Okay, let's select a particular purchase order or a framework order. Okay, हम यहाँ पे ये नंबर डालते हैं। Okay, now you see this is the order number, the date, ordering company, and there are 2 items in this, right? तो हम क्या करेंगे, ये 3 dots है दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड पे, the last option, the 3 dots, just click on the 3 dots. The moment you click on the 3 dots, आपको क्या स्क्रीन पे आएगा, create measurement sheet. Okay, so when you click on the 3 dots, you will get create measurement sheet. उस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जेएमएस का पेज ओपन होगा, ये आपको फिल करके सबमिट करना है, जैसे आपको जेएमएस नंबर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको, ऑर्डर नंबर, स्टार्ट डेट, आपका परचेज ऑर्डर का स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ से मिलेगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी जेएमएस बनाएंगे इट शुड बी विद इन द पीओ डेट्स। ये आपके पीओ डेट्स हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा आपका परचेज ऑर्डर स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है। देन फर्स्ट थिंग यू हैव टू सेलेक्ट इज डिपार्टमेंट। पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो दोनों आइटम्स नजर आएंगे जो आपके परचेज ऑर्डर में है। ओके, यू विल बी एबल टू सी बोथ द आइटम्स। नाउ आपको इसको एक्सपेंड करना है। ओके, और उस पर्टिकुलर पहले लाइन आइटम में कितने सर्विस कोड है, ये देखिए ये 1 2 3 सर्विस कोड है। अब आप जेएमएस सबके लिए बना रहे हो तो यू कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल, और अगर स्पेसिफिक के लिए बना रहे हैं तो आप उसको सिर्फ टिक कर दीजिए। तो अगर आप उस पर्टिकुलर सारे सर्विस कोड के अगेंस्ट जेएमएस बना रहे हैं तो यू कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल, तो वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर आपको स्पेसिफिक की एक पर्टिकुलर सर्विस कोड के अगेंस्ट जेएमएस बनाना है तो यू जस्ट मेक अ टिक मार्क ऑन दैट। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। Okay. Now before I go further, इससे आगे बढ़ने से पहले before I go further, there is a download Excel and upload Excel also. ठीक है, देखो ये परचेज ऑर्डर में सिर्फ 2 लाइन आइटम है, तो ये बहुत इजी है ऑनलाइन जेएमएस सबमिट करने के लिए। But suppose if your purchase order has 10-15 line items, 20 line item, 150 line item, there are purchase orders which have line items which 20, 25, 30, 40, 50। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट का ऑप्शन दिया है। ये ईबीएस में भी था, यहाँ पर भी सेम अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, पहले डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करेंगे। तो इसका टेम्पलेट एक्सेल को ओपन कर दीजिए।
जैसे आप ओपन करेंगे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको वो पूरा फाइल भरना है. Okay, you have to just enter all the end details over here. Work order number, line item number, service code, start date, end date, drawing number. अगर जो एप्लीकेबल है डालिए, जो एप्लीकेबल है छोड़ दीजिए. ओके, यहाँ और कोई चेंजेस करना नहीं है, कोई कलर चेंज नहीं करना है. अगर आपको ये कलर पसंद नहीं, कोई बात नहीं. यू जस्ट हैव टू फिल अप ऑल दिस डिटेल्स, सेव इट. इसको सेव करना है और पोर्टल पे आके दोबारा अपलोड पे क्लिक करना है. Okay. This is only for JMS, which is more than 10 items, 5 items, 20, 30, 40 items, 50 items. क्योंकि वो ऑनलाइन भरने में दिक्कत होती है वेंडर को. आपके पास अगर एक आध दो आइटम है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए. ओके, नाउ जब आप उसको सेव करेंगे तो ये ध्यान से पढ़ना. ये जो चीज है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना. ओके, जब आप एक्सेल डाउनलोड करते हैं तो उसका फॉर्मेट .xlsm होता है. ये मैक्रो फाइल, उसका एक्सटेंशन XLSM होता है. पर जब आप उसको सेव करेंगे तो आपको एक्सेल में सेव करना है. जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, फाइल सेव एज, और यहाँ पे मान लो अपने उसको डाउनलोड में सेव कर दिया. ये देखो अभी मैक्रो है. अभी देखो ये मैक्रो, एक्सेल मैक्रो फाइल है. आपको क्या करना है, इसको सिंपल एक्सेल फाइल में सेव करना है. ओके, तो ये एक चीज ध्यान रखना है जब आप उसको सेव करेंगे. तो हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर सर्विस कोड के अगेंस्ट JMS हमें क्रिएट करना है, तो हमने उसको टिक मार्क कर दिया. यहाँ पे आपको बताएगा ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है, क्लेम क्वांटिटी कितना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितना है, बेस प्राइस कितना है, नेट अमाउंट कितना है. इट विल शो यू एवरीथिंग. यहाँ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये टेस्टिंग सर्वर है. ओके, पर आपको बराबर सारा डिटेल्स नजर है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कैलेंडर ऑप्शन. When you click on the calendar option, you can check the price list. What is the price list? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परचेज ऑर्डर देखा नहीं होता है. परचेज ऑर्डर कोई और देखता है, JMS कोई और बनाता है, तो उसको पता नहीं होता है प्राइस लिस्ट क्या है. यू कैन चेक द प्राइस लिस्ट. देन क्लिक ऑन ऐड. ओके, ईबीएस में भी यही था, हम बैकअप शीट में जाते थे और ऐड पे क्लिक करते. सेम यहाँ पे हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करके ऐड पे जाते हैं. देन एंटर द स्टार्ट डेट. हमने JMS कब स्टार्ट किया था, काम कब शुरू हुआ, काम कब खत्म. ओके, तो JMS स्टार्ट डेट, JMS एंड डेट. ओके, मान लो हमने 3 जुलाई को स्टार्ट किया था 2023 और हमने खत्म किया 20 जुलाई 23. Okay, so our first rule, the JMS start date and the end date should be within the PO dates. Okay, ये PO dates के अंदर होना चाहिए. अगर मैं आज का डेट लूंगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मेरा PO ऑलरेडी 2023 में खत्म हो गया. ओके, नाउ नंबर ऑफ टाइम ये सब सेम रहेगा. इक्विपमेंट नंबर, लोकेशन, रिमार्क्स अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है. ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी. Then click on geometry. When you click on geometry, आपको सबसे पहले शेप सेलेक्ट करना है. ओके, यहाँ पे मैं ईच लेता हूँ. आपको चेक करना है कि आपके परचेज ऑर्डर में आपकी बिलिंग कैसी है. हाउ इज योर बिलिंग, वेदर यू आर पेड आवरली बेसिस, वेदर यू आर पेड डेली डे बेस, how many days you work based on that, or whether specific task, or whether each, or whether it is monthly, आपने पूरा महीना काम किया है. तो आपका बिलिंग कैसा होगा वो आपको आपके परचेज ऑर्डर में चेक करना है. वही बेसिस पे आपको यहाँ पे शेप एंटर करना है. एंड देन आई एंटर माय क्वांटिटी. आई एंटर एज 1 and then I click on calculate. When I calculate, I get a result over here, and then I click on save to come out of geometry box, and then I click on done once I come out of the calculator option. ठीक है, राइट. तो हमने सिंपल क्या किया, पहले कैलकुलेटर पे क्लिक किया, फिर ऐड किया, फिर JMS स्टार्ट डेट एंड डेट डाला, फिर हमने अपना क्वांटिटी एंटर किया, ज्योमेट्री में जाके क्वांटिटी एंटर किया और हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट किया, हमने ईच सेलेक्ट किया, एंड वी हैव
enter the details. The next option is attachments and approval. तो आपको अप्रूवल में सेलेक्ट करना है कि आपका जेएमएस कौन अप्रूव करने वाला है। A1 नेम, यहाँ पे सेकंड रूल है, आपको करेक्ट A1 नेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट A1 नेम, then you can attach document to justify your JMS. तो पहले आप जो डॉक्यूमेंट डालते थे आपको वही कंटिन्यू करना है। अगर आपको पता नहीं आपको क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आप अपने बायर या A1 से पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने अटैच किया और यहाँ पे हमने JMS शीट डाल दिया। एक और फाइल अटैच करेंगे और उसको हम अदर्स ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट अप्रूवल लिया और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, अटेंडेंस शीट है, स्कैन कॉपी है, कुछ ड्राइंग्स है, कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ रिपोर्ट है, कोई टेस्टिंग रिपोर्ट है या इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जो भी आपने काम किया है उसका अगर जो भी डॉक्यूमेंट है जो जस्टिफाई करता है आपका जेएमएस, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इफ यू डोंट नो व्हाट डॉक्यूमेंट्स टू अटैच, अप्रोच योर बायर एंड चेक विद हिम, और अप्रोच योर A1, check with him what documents are required. Okay, finally when I come down, I scroll down, I can enter remarks. Okay, you can write down any remarks. अगर आपको कोई remarks डालना तो आप डाल सकते हैं। And you see something over here, final joint measurement sheet, and there is a check box. अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर रहे हैं तो आप सिस्टम को ये बता रहे हैं कि ये मेरा आखिरी जेएमएस है। दिस इज द फाइनल जेएमएस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर। तो अगर आप टिक मार्क करके इसको सबमिट करेंगे, द सिस्टम विल लॉक योर पीओ and next time you will not be able to create another JMS. तो आपको यहाँ पे टिक मार्क नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो आपका परचेज ऑर्डर लॉक हो जाएगा। परचेज ऑर्डर लॉक हो जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम जेएमएस नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपने ही सिस्टम को बता दिया है कि ये मेरा फाइनल शीट है। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे सिस्टम चेक करेगा कि आपने सारे डिटेल्स जो डाले हैं वो करेक्ट है, और फिर आप या तो उसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपको जेएमएस नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये फाइनल एसईएस पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपने टिक कर दिया है तो आपका परचेज ऑर्डर लॉक हो जाएगा, फिर आपको बायर को बोलकर उसको अनलॉक करवाना पड़ेगा। ओके, आपको रिव्यू पे क्लिक करना है। रिव्यू क्या करेगा, आपका पूरा जेएमएस को एक बार रिव्यू कर देगा, चेक करेगा कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है जेएमएस में वो करेक्ट है, कंप्लीट है, कुछ आपने मिस तो नहीं किया है। अगर कुछ मिस किया तो आपको वो इंडिकेट करेगा कि आपने ये चीज नहीं भरा है या वो चीज इनकम्प्लीट है, एंड देन यू कैन ईदर सेव, तो सेव एज ड्राफ्ट में चला जाएगा। एंड इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, आई से यस, and my JMS is submitted and I get my JMS number on the screen. Okay, so this is the process of how you create a JMS on Supplier First Portal. Any questions on JMS creation? सर, हेलो सर। Yes sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोगों का वर्क ऑर्डर मिला है ग्रेचुइटी पेमेंट का, तो अक्टूबर महीने में मिला है, तो हम लोग तो अभी इस महीने में वो प्रोसेस कर रहा है, तो उसका पीरियड क्या देंगे जेएमएस पीरियड का? जेएमएस का क्या है पीरियड जो स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड है ना, तो उसके रिगार्डिंग तो मतलब आपका कैसा है, मंथली बिलिंग है कैसा है? जी पहले तो मंथली होता था। ये हम लोगों का जो ग्रेचुइटी लेबर का ग्रेचुइटी होता है ना, ग्रेचुइटी रिइंबर्समेंट के लिए वर्क ऑर्डर मिला है, तो उसके लिए हम लोग को पीरियड क्या डालना पड़ेगा? देखो, ये आपको अपने बायर से चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो, अगर आपका मंथली है, अगर आप अक्टूबर का महीने का बिलिंग कर रहे हैं
तो आप स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर डाल सकते हैं, एंड डेट 31 अक्टूबर सर डाल ये सकते हैं, मंथली ऐसा बिलिंग करके का डाल नहीं, सकते हैं। एक्चुअली जो एम्प्लॉय लोग 5 इयर्स के ऊपर काम करके छोड़ गया उन लोगों का ग्रेचुइटी का रिम्बर्समेंट का है। तो हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो आपके परचेज ऑर्डर में लिखा होगा कि आपको पेमेंट कैसे मिल रहा है, कि आपने कितने लोगों, कितने एम्प्लॉयज का ग्रेजुएटी कंप्लीट किया है, उसके हिसाब से पेमेंट होगा, या आपको कैसा पेमेंट होगा, ये आपको परचेज ऑर्डर में चेक करना पड़ेगा या बाहर से चेक करना पड़ेगा। ओके मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपका परचेज ऑर्डर चेक नहीं कर सकता ओके हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, हेलो। यस। सर मुझे एक ये था कि अपलोड करने के बाद अगर कुछ चेंजेस करना होगा जेएसएम में तो कर सकते हैं। नहीं, देखो, आपने अगर सबमिट कर दिया है तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने A1 को बोल सकते हैं कि उसे रिटर्न करने के लिए, तो अगर वो रिटर्न आ जाएगा आपके पास, फिर आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। पर ओके अगर आपने सबमिट किया तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ओके ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको A1 को कांटेक्ट करके बोलना पड़ेगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच करना भूल गई हूँ, या ये पर्टिकुलर हाँ डिटेल नहीं डाला है। तो A1 क्या करेगा, आपका JMS अप्रूव नहीं करेगा, वो रिटर्न करेगा। जब वो रिटर्न करेगा तो वो दोबारा आपके पास आएगा, उसके बाद आप उसमें जो भी चेंजेस करना है करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। सर जेएसएम अपलोड करने के बाद मतलब कितने दिनों के बाद रिप्लाई मिल जाता है मेल पर, या अप्रूव है या नॉट अप्रूव है, या मेल पे नहीं। अगर मुझे नहीं मिला तो हम्म। मुझे कैसे ट्रैक करना होगा ये चीज कि ये जेएसएम आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि हाँ, मैं तो वेट ये करती जो रहूंगी मैंने मेल्स का। आपको बताया ना, मेजरमेंट शीट में जाएंगे ना, तो हाँ यहाँ पे मेजरमेंट इन प्रोसेस है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा किसके पास पेंडिंग है आपका JMS। A1 के पास पेंडिंग है या A2 के पास पेंडिंग, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमने JMS बनाया, ये आपके पास पेंडिंग है, आप उसको अप्रूव कर दो, तो वो अप्रूव कर देंगे। अगर मैंने कांटेक्ट करके बताने के बाद भी मतलब अप्रूव नहीं हुआ तो उनको मेल कर सकती हूँ मैं, मतलब हाँ, आप मेल कर सकते डायरेक्ट हो टू या एचओडी बात से कर सकते हो, हाँ, वो आपको कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। फॉलो अप ले रहे या अपडेट ले रहे या वर्किंग है प्रोसेस हम्म। में है, ऐसा मैं हम्म। वर्बली बताऊंगी तो वो समझ हाँ। में नहीं आएगा। हाँ, बट तो मेल जैसा है, के नहीं, देखो मैडम, आपका कम्युनिकेशन बायर के साथ आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं। आपको ईमेल भेजना है ईमेल भेज सकते हैं, वर्बली बात करना है वर्बली कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको जैसा कांटेक्ट करना है उनको आप कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट्स? So JMS is clear, simple, right? So see, the entire process is so simple and easy कि आपको सिर्फ 4-5 चीजें ऑप्शन हेलो टिक करना है, हेलो एंटर करना है, और आपका JMS बन जाएगा। हाँ, बोलिए सर। हेलो सर, हम जब जेएमएस क्रिएट करते हैं, जब हम हम्म। ऑर्डर पुट करते हैं इसमें, तो उस जो मल्टीपल लाइन आइटम अपने को दिखते हैं जिसमें अपने को जेएमएस क्रिएट करना है, तो उसका हम्म। वैल्यू वहाँ पे शो नहीं करता है। नहीं नहीं, जब आप पूरा डिटेल डालेंगे ना, और हम्म। जब देखिए ये टेस्टिंग सर्वर है इसलिए आपको नहीं दिख रहा, आप जब JMS करेंगे तो आपको वैल्यू दिखेगा वहाँ पे। नहीं, हमारे पे कुछ पीओ है ना, उसका लाइन आइटम वाइज वैल्यू नहीं दिखता है वहाँ पे। तो मतलब वैल्यू, मतलब कौन सा वैल्यू, जो टोटल वैल्यू जो वैल्यू, उसका है? अच्छा, वो लाइन आइटम में कितना वैल्यू है पीओ में, मतलब जैसे कि हम जो एक पीओ है XYZ, उसके अंडर अगर 3 लाइन आइटम है, तो ईच लाइन आइटम में कितना वैल्यू है। तो ये यहाँ पे परचेज ऑर्डर में आपको दिखेगा ना, उसका प्राइस क्या है जो भी। हाँ, तो ये ऑर्डर देखिए ना, कॉपी ये, ओपन करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये नहीं नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हर एक लाइन आइटम का क्या वैल्यू है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर में मालूम पड़ जाएगा आपको। ये देखिए ना, न्यू ऑर्डर्स में जाएंगे, अगर आप कोई भी ऑर्डर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ना उसका वैल्यूज क्या है। यहाँ पे बताता है आपको ये कितना अमाउंट है, GST% कितना है, ये सारा कुछ यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा वैल्यू क्या है, लेकिन JMS बनाने के टाइम पे मुझे आइडिया नहीं कि वहाँ पे क्वांटिटी डालने के बाद वो अमाउंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है। ओके। वो आप एक बार चेक कर लीजिए ना, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप क्योंकि मुझे मैंने जितने भी ऑर्डर चेक किए ना, उसमें लाइन आइटम
वैल्यू नहीं दिख रही थी। ओके ओके, तो आप स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हैं मुझे, तो चेक कर लेंगे जो भी है। ओके, थैंक यू। ये वेलकम। So everybody is through with JMS, right? सर एग्जैक्टली मीन्स JSM और अपना जो ये अपलोड करना है इनवॉइस, वो मैच होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू हेलो। आगे में अप्रूव हो गया, समझ लो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। Okay, sorry, I just got disconnected. That is the reason why आप लोग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. So I just connected back again. I hope you're able to hear my voice and see my screen, right? Okay, fine. So we were talking about हमने JMS का तो process पूरा समझ लिया है, how you create JMS. Now, हेलो, हाँ बोलिए ना मैडम. ये JSM जो अपलोड करते हैं मैन्युअल, मतलब क्वांटिटी या कैलकुलेशन जो करते हैं, वो फाइनल इनवॉइस के साथ मैच होना चाहिए। नहीं, कैसा होता है ना, जनरली ये प्रोसेस कैसा होता है कि आप पहले JMS बनाते हैं, वो अप्रूव होने के बाद आपको फाइनल अमाउंट आता है, इसलिए हम तब बोलते हैं आप इनवॉइस बनाइए। QSD के अप्रूवल होने के बाद मान लो अगर आपके JMS में कुछ डिडक्शन हुआ तो आप क्या करोगे, इसलिए इनवॉइस आपको बाद में बनाना है, अभी कोई इनवॉइस अपलोड नहीं करना। जब आपका JMS अप्रूव होगा उसके बाद आप इनवॉइस बनाए। ओके, ठीक है ना, आप समझ गए ना मेरी बात को। मान लो समझ लो आपने 1000 का इनवॉइस बना भी दिया JMS बनाते समय, बाद में पता चला कि A1 ने कुछ डिडक्शन किया है, 50 रुपए उन्होंने डिडक्ट किया क्योंकि आपने कुछ पॉलिसी फॉलो नहीं किया, कुछ प्रोसेस फॉलो नहीं किया। आपके परचेज ऑर्डर में लिखा है कि कुछ डिडक्शन, अगर आप सेफ्टी फॉलो नहीं करेंगे रूल्स तो आपको डिडक्शन होगा, तो फिर आपको दोबारा वापस से इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसलिए आप इनवॉइस अभी मत बनाइए। आपका JMS जब अप्रूव हो जाएगा, आपको जब मेल आ जाएगा कि आपका JMS अप्रूव हो, उसके बाद आप इनवॉइस बनाओ तो आपका इनवॉइस का अमाउंट और JMS का अमाउंट दोनों मैच होगा। ओके सर, मतलब सर्विस कुछ भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस के अकॉर्डिंग में अगर JSM अपलोड करती हूँ, अपलोड करने के बाद अप्रूवल मिलने के बाद मुझे इनवॉइस अपलोड करना है। करेक्ट। यस, तो कैसा रहेगा अगर आप अभी से इनवॉइस बना दोगे तो बाद में पता चला कि आपका इनवॉइस का अमाउंट और आपका जो JMS का अमाउंट दोनों मैच नहीं हो रहे, फिर आपको दोबारा इनवॉइस बनाना पड़ेगा, वो इनवॉइस कैंसिल करके या उसको अपडेट करके दोबारा चेंजेस करना होगा। इसलिए आप पहले JMS बनाइए, उसको अप्रूव कराइए A1, A2 और QSD से। जैसे QSD अप्रूव करेगा उसके बाद आप इनवॉइस बनाओ, ताकि वही सेम अमाउंट आप अपने इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर सकें। ठीक है? Hello. Yes, Hello. Sir, after QSD release, what is the tag for invoice upload, sir? See, the moment you get a mail from QSD that your JMS is approved, after that you can approve on the same day or the next day. There is no tag for that. Okay, because in our company actually the invoice creation, the tag is 48 hours. In 48 hours we get the invoice, and after QSD release the status will come to invoice pending for upload. No,
So if in your organization, see, it is up to you. If there is 48 hours TAT in your company, then you can upload it after 48 hours, no problem. Okay, because many Because many see, times what happens. the payment cycle will start only after you upload your invoice. So if you even upload it after 10-15 days also, it is okay. No, sir. In many times now after Hmm. when you upload the invoice now, and there is a delay in upload, means after 2 to 3 days, then the customer delete the JMS, and again we have to create a new JMS and we have to upload No, so that see, invoice. for that you have to inform the particular buyer or the Okay. A1 that in your organization there is a TAT that we have Mhm. to create the invoice only after 48 hours. It takes 48 hours for whatever the process is. So Okay. you'll have to talk to them and get this sorted out. Otherwise, because see, they are not aware. Unless until you make them aware, you talk to them, you have meetings, or you send an email, then only they will be able to know. Otherwise, how will they know? No? Like how you have told me right now, then only I Mhm. came to know. So you have Right, to sir. communicate it to them, saying that not to delete any JMS because it takes 48 hours for for your organization to create an invoice. Okay, so Okay, you sir. can discuss among the buyer and they will be able to help you over that. Okay, sir. Okay. तो चलिए अभी हम इनवॉइस अपलोड करते हैं. So for invoice upload, what I'll do is I'll go to measurement sheet, go to ready for invoice submission, and then I click on the unit rate measurement. तो यहाँ पर मुझे क्या नजर आएगा, जितने भी जेएमएस अप्रूव हो गए, सारे अप्रूव्ड जेएमएस जो क्यूएलडी अप्रूव होने के बाद वो सारे जेएमएस यहाँ मुझे नजर आएंगे. Now remember the rule. Okay, just remember this correctly. You can have multiple JMS of the same purchase order. Same purchase order का multiple JMS आप क्लब करके एक इनवॉइस कर सकते हैं. लेकिन रूल क्या है, उसका एसएससी कोड सेम होना चाहिए. ओके, मतलब कि एक पीओ में आपने एक परचेज ऑर्डर में आपने दो जेएमएस बनाए, दो अलग अलग सर्विस कोड के या दो अलग अलग लाइन आइटम के, राइट. तो अगर आपने दो लाइन आइटम के जेएमएस बनाए हैं, आप इनवॉइस एक कर सकते हैं सेम ऑर्डर का, लेकिन उसका जो ये एसएससी कोड है, सैप कोड है, सर्विस अकाउंटिंग कोड है, ये अगर सेम होगा तो आप इनवॉइस क्लब करके दोनों जेएमएस को क्लब करके एक इनवॉइस बना सकते हैं. लेकिन अगर उनका एसएससी कोड अलग अलग है तो आपको अलग अलग जेएमएस अलग अलग इनवॉइस बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. नाउ आपको क्या करना है, टिक करना है कि कौन से जेएमएस के अगेंस्ट आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हो, अगेंस्ट विच जेएमएस यू आर ट्राइंग टू अपलोड द इनवॉइस. Now, at this particular point, you have the option to cancel that JMS. यहाँ पर आने के बाद, ये इनवॉइस अपलोड के तक आने के बाद भी अगर आप चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन सेंड बैक. जैसे आप सेंड बैक क्लिक करेंगे, ये जो जेएमएस है दोबारा वापस A1 के पास चला जाएगा. ठीक है, मान लो आपने जेएमएस बनाया, अप्रूव भी हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वांटिटीज बराबर नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ था उसमें. आपको उसको कैंसिल करना है और दोबारा फ्रेश नया जेएमएस बनाना है. इन दैट केस आप उसको टिक करके सेंड बैक कर सकते हैं. जैसे आप सेंड बैक करेंगे तो ये वापस आपके A1 के पास जाएगा. आप A1 को बोलेंगे उसको रिजेक्ट करने. रिजेक्ट इज इक्वल टू डिलीट. अगर वो रिटर्न करेंगे तो वो रिटर्न आपके पास है फॉर मॉडिफिकेशन. तो ये दोनों अलग अलग चीज है. जब जेएमएस रिटर्न होता है तो आपने मतलब हो सकता है कुछ छोटी छोटी मिस्टेक की होंगी या कुछ अटैचमेंट नहीं किया होगा, देन इट इज रिटर्न बैक टू यू. सो यू कैन करेक्ट इट एंड रीसबमिट इट. बट रिजेक्ट, अगर कोई जेएमएस रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब वो डिलीट होता है, आपको नया जेएमएस बनाना पड़ेगा. ये दोनों चीज आप ध्यान में रखना. तो कई बार हमें वेंडर्स कॉल करके बोलते हैं कि सर मुझे ये जेएमएस डिलीट करवाना है. ओके, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिस्टेक हो गए थे, हमने बराबर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, अटैचमेंट भी हमने बराबर से डाला नहीं था.
ओके, तो उसके लिए आप उनको बोलिए रिजेक्ट करने के लिए। जब वो रिजेक्ट करेंगे इसका मतलब वो डिलीट हो गए, फिर आप नया जेएमएस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रोसेस बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इस पोर्टल पे आपको बता नहीं सकता हूँ कि इनवॉइस कैसे अपलोड होते हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो, इन दैट ओनली आई एम गोइंग टू explain you the process of how to upload your invoice on Supplier First Portal. ठीक है, तो ये देखिए हमने रेडी फॉर इनवॉइस पे क्लिक किया है। ओके, यहाँ पे हमने यूनिट रेट सेलेक्ट किया ड्रॉप डाउन से, यूनिट रेट जेएमएस, राइट। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो किस तरह से आपको जेएमएस नंबर दिखेगा, टोटल अमाउंट। ये देखिए आपको यहाँ पे अमाउंट नजर आ जाएगा कि आपको कितना अमाउंट का इनवॉइस बनाना है। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे नजर आ जाएगी। ओके, শেষের কোথায় বেশিক্ষণ 12:30 পর্যন্ত টাইম দিয়েছিল। यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करके अपलोड इनवॉइस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको इनवॉइस अपलोड करना है तो अपलोड इनवॉइस पे क्लिक कीजिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको सेंड बैक करना है, आपको कैंसिल करना है, ये जेएमएस को कैंसिल करना है, तो आप ये स्टेज पर आने के बाद भी रिटर्न कर सकते हैं। ओके, जेएमएस रिटर्न A1 के पास जाएगा और A1 को आप बोल सकते हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए। रिजेक्ट करने से वो जेएमएस डिलीट हो जाएगा, आपको फिर नया जेएमएस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हम अपलोड इनवॉइस बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको स्क्रीन नजर आएगा। ओके, इस तरह का एक स्क्रीन नजर आएगा जहां पे सबसे पहले आपको इनवॉइस अटैच करना है। आपका इनवॉइस का जो है वो आपको अटैच करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस कॉपी का जो फाइल है जो आपने बनाया है इनवॉइस। ये देखिए अपलोड हो गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको इनवॉइस का डिटेल्स आ रहा है, ये इनवॉइस कॉपी है। यहाँ पे फाइल सेलेक्ट फाइल टाइप आ रहा है। तो आपका फाइल क्या है, डिजिटल साइन इनवॉइस है कि नॉन डिजिटल साइन इनवॉइस, आपको वो सेलेक्ट करना है। हमने डिजिटल साइन सेलेक्ट कर दिया। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें डिटेल्स एंटर करनी। ये देखिए यहाँ पे प्लीज आप लोग ध्यान रखें, जब भी आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, whenever you are uploading your invoice, please be very careful over here. Everything should match with the physical copy of your invoice. इनवॉइस पे जो आपने लिखा है वही कॉपी करना है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है। जैसे इनवॉइस नंबर है, अगर इनवॉइस कॉपी में 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे भी 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 नहीं लिखना। तो यहाँ पे आप जो भी डिटेल डालोगे इट शुड मैच विद योर इनवॉइस कॉपी। अगर वो मैच नहीं होगा तो वो डिफेक्टिव इनवॉइस में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, इनवॉइस डेट, इनवॉइस पे जो डेट है वो डालना है। मान लो आपका इनवॉइस के ऊपर डेट 1 नवंबर है और आज की तारीख 7 नवंबर है, तो आज की डेट नहीं डालना है, 7 नवंबर नहीं डालना है, 1 नवंबर डालना है, क्योंकि इनवॉइस में 1 नवंबर प्रिंटेड है, वही डेट आपको एंटर करना है। तो यू एंटर दैट डेट। ओके, डेट हमेशा कैलेंडर से एंटर कीजिए और अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, जो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बिल फ्रॉम आएगा। बिल फ्रॉम में आपको सेलेक्ट करना है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट कर दीजिए और वहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस या जो भी है वो सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे नजर आएगा। नाउ यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू व्यू इनवॉइसिंग इंस्ट्रक्शन, ये एक लिंक है और उसके नीचे क्या लिखा है, आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द इनवॉइसिंग इंस्ट्रक्शन। वहाँ पे भी एक छोटा सा बॉक्स है, वो अभी ये नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू व्यू इनवॉइसिंग इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन इनवॉइसिंग इंस्ट्रक्शन ओपन होगा
आप उसको गो थ्रू कीजिए। गो थ्रू करने के बाद आप दोबारा पोर्टल पे आ जाइए और उसको टिक मार्क कीजिए। यहाँ देखिए, ध्यान रखना, यहाँ पे अभी सबमिट बटन ग्रेड आउट है, सबमिट बटन आपको दिख नहीं रहा है। जैसे आप उसको टिक करेंगे तो सबमिट बटन एक्टिवेट हो जाएगा और आप सबमिट करेंगे तो आपका इनवॉइस सबमिट हो जाएगा। तो जब तक आप वो छोटे बॉक्स पे टिक नहीं करेंगे वो सबमिट बटन एक्टिवेट नहीं होगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तब आप सबमिट कर सकते हैं। आर यू श्योर? यस, और आपका इनवॉइस सबमिट हो जाएगा। ओके, तो वेरी सिंपल है। आपको जेएमएस से टिक करना है, अपलोड इनवॉइस पे क्लिक करना है, इनवॉइस कॉपी अटैच करना है। ओके, अटैच करने के बाद आपको इनवॉइस नंबर, डेट, अमाउंट, बिल फ्रॉम, ये सारे डिटेल एंटर करके सबमिट करेंगे, आपका जेएमएस सबमिट हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस, राइट? एनी क्वेश्चंस ऑन इनवॉइसिंग अपलोड? सर, जो क्लब करने हैं इनवॉइसेस, मतलब इनवॉइसेस के रिगार्डिंग, वो मतलब वहाँ पे टिक करना है ना ओनली? हाँ, अगर मान लो जैसे कि देखो ये देखो, ये 23 ऑर्डर नंबर है, ये भी 23 ऑर्डर नंबर है, ठीक है? दोनों ऑर्डर सेम है, दोनों का एसएससी कोड सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आप दोनों को टिक करके अपलोड इनवॉइस क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। या ओके, थैंक यू। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है? प्रोसेस समझ में आ गया? वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। ओके, so if you will just follow all the instructions properly, you can create the JMS very easily. Okay, we have made the portal very simple and easy compared to what we were using earlier. तो ये एकदम सिंपल और इजी प्रोसेस है जो आप फॉलो कर सकते हैं और JMS बना सकते हैं और इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। Okay. Now, some other important information: we conduct trainings on every Monday and Fridays. Okay, Monday और Friday को 11 बजे से हम सेशंस कंडक्ट करते हैं। आपको और कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना है, जो आपको लिंक मिला है उसी पे क्लिक करना है। अगर आप पुराना पिछले महीने का लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पिछले महीने के लिंक पे ले जाएगा। तो आपको यही पर्टिकुलर लिंक से जाना है और आपको रजिस्टर करके अंदर आना है। ओके, दोज हु केम इन लेट, जो शुरू में थोड़ा बहुत लेट आए हैं, आप से रिक्वेस्ट है कि आप चैट पे आप अपना नाम, आपका कंपनी का नाम और वेंडर कोड ये चैट में डाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो हम अपना एक रिकॉर्ड रखते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कौन से वेंडर्स हमारे साथ सेशंस अटेंड किए हैं और किसने नहीं अटेंड किए, तो हम उनको इनवाइट भेज सकते हैं। तो अगर आपके कंपनी में और भी कोई लोग हैं जिनको ये सीखना है जेएमएस कैसे अपलोड करना है, आप उनको मंडे और फ्राइडे, ये 2 दिन होता है 11 बजे से, आप उनको बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन जैसे एक समराइज करते हैं। व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड विद जेएमएस ऑन सप्लायर फर्स्ट पोर्टल कि सप्लायर फर्स्ट पोर्टल पे लॉगिन कैसे करते हैं, सप्लायर पोर्टल में क्या क्या फीचर्स हैं, जहाँ पे हम कैसे ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं, पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उसको फिल्टर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ये पूरा पोर्टल हमने व्यू किया है। ओके, और फिर हमने जेएमएस क्रिएशन किया है और फिर हमने इनवॉइस अपलोड किया है। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, एक फीडबैक लिंक आपको यहाँ शेयर करूंगा, तो अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसे लगा। आपके जो भी फीडबैक रहेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वेबिनार सेशन में उन फीडबैक को हम यूज करें, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे वेंडर्स जो सप्लायर्स है जो ये सेशंस अटेंड करते हैं उनको फायदा होना चाहिए, है ना। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें कुछ और चीजें सेशन में ऐड करना है तो आप अपने फीडबैक में डाल सकते हैं। तो ये रहा फीडबैक फॉर्म, आप उसको क्लिक करके फीडबैक दे सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, आई एम स्टिल देयर ऑनलाइन, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। So thank you everybody for joining today's session and I hope you have learned a lot from this session. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेमलता जी फर्स्ट सेशन मतलब स्टार्टिंग का आप मिस कर दिए थे क्या?
यस सर। हाँ तो आप फिर से मंडे को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। जो मतलब मुझे देखना था ना जेएसएम पोर्टल पे कैसे अपना इनवॉइस अपलोड करना है। हाँ तो वो तो आपने देख लिया ना वो ऑलरेडी। तो हो गया, हाँ वो तो हो गया, बट बिफोर जो इंट्रोडक्शन था ना जेएसएम का हाँ वगैरह तो वो आप चाहिए तो आप मंडे को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं पेमेंट रिगार्डिंग वगैरह, ठीक है। और सेम लिंक पे अगेन रजिस्टर करना है अगेन। हाँ आपको जैसे वही सेम लिंक पे क्लिक करना है, आपको रजिस्टर करके वो ज्वाइनिंग लिंक आएगा, आप ज्वाइन करके सीधा वापस से अटेंड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक ठीक यू। है। हाँ तो हम सेशन में सब सेम ही क्लियर, हम सेम ही कवर करेंगे, जो आज हमने कवर किया सेम मंडे को भी सेम कवर करेंगे, इसमें कुछ अलग से नहीं बताएंगे। तो अगर आपने कुछ मिस किया है तो आप वापस से अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये रिपीटेड हो गया है, मुझे वापस से नहीं सुनना है, तो आपकी मर्जी है, आप अटेंड कर सकते हैं, या नहीं अटेंड करना चाहते हैं नहीं भी अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। যেটা এখানে কেমস যে ফরম্যাটটা ছিল। হ্যাঁ, এবার আমি একটা জিনিস হচ্ছে আমাকে একটু বুঝতে হবে, কারণ আমি তো কোনো সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা নিয়ে দেখিনি কোনোদিন। আমি একটু ডিটেইলগুলো দেখো, ডিটেইলটা আমাকে একটু বুঝতে হবে ব্যাপারটা কি, কিভাবে কাজ চলে, কি হয়, সব কিছুই বুঝতে হবে, কারণ আমি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট জানি না। দেখো সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে যেটুকু আমি পেয়েছি, এদের যখন টেন্ডার হয়